आमोस 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स पढ़ेंगे। आमोस इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, इन वचन को हम समझ सके और हमारा बल बढ़ जाए और विश्वास की जीत में हम परमेश्वर को महिमा दे सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। 5 चैप्टर्स से शुरू करेंगे। Lamentation for Israel, an exhortation to repentance. First verse. Hear ye this word which I take up against you, even a lamentation, O house of Israel. The virgin of Israel is fallen, she shall no more rise. She is forsaken upon her land, there is none to raise her up. For thus saith the Lord God, the city that went out by 1,000 shall live 100, and that which went forth by 100 shall live 10 to the house of Israel. For thus saith the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live. But seek not Bethel, nor enter into Gilgal, and pass not to Beersheba, for Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to naught. Seek the Lord, and ye shall live, lest he break out like fire in the house of Joseph, and devour it, and there be none to quench it in Bethel. Ye who turn judgment to wormwood, and live of righteousness in the earth, seek him that maketh the 7 stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night, that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth. The Lord is his name, that strengtheneth the spoiled against the strong, so that the spoiled shall come against the fortress. They hate him that rebuketh in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly. For as much therefore as your trading is upon the poor, and ye take from him burdens of wheat, ye have built houses of hewn stone, but ye shall not dwell in them. Ye have planted pleasant vineyards, but ye shall not drink wine of them. For I know your manifold transgressions and your mighty sins. They afflict the just, they take a bribe, and they turn aside the poor in the gate from their right. Therefore the prudent shall keep silence in that time, for it is an evil time. Seek good and not evil, that ye may live, and so the Lord, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken. Hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Therefore the Lord, the God of hosts, the Lord saith thus, Wailing shall be in all streets, and they shall say in all the highways, Alas, alas! And they shall call the husbandman to mourning, and such as are skillful of lamentation to wailing. And in all vineyards shall be wailing, for I will pass through thee, saith the Lord. Woe unto you that desire the day of the Lord! To what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. As if a man did flee from a lion, and a bear met him, or went into the house, and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him. Shall not the day of the Lord be darkness and not light, even very dark and no brightness in it? I hate and despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies. Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them, neither will I regard the peace offerings of your fat beasts.
Take thou away from me the noise of thy songs, for I will not hear the melody of thy viols. But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream. Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness 40 years, O house of Israel? But ye have borne the tabernacle of your Moloch, and hewn your images, the star of your God, which ye made to yourselves. Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the Lord, whose name is the God of hosts. Chapter 6. The wantonness of Israel shall be plagued with desolation. First verse. Chapter 6, first verse. Woe to them that are at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of the nations, to whom the house of Israel came. Pass ye unto Calne and see, and from thence go ye to Hamath the great. Then go down to Gath of the Philistines. Be they better than these kingdoms, or their border greater than your border? Ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near, that lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs out of the flock, and the calves out of the midst of the stall, that chant to the sound of the viol, and invent to themselves instruments of music like David, that drink wine in bowls, and anoint themselves with the chief ointments, but they are not grieved for the affliction of Joseph. Therefore now shall they go captive with the first that go captive, and the banquet of them that stretched themselves shall be removed. The Lord God hath sworn by himself, said the Lord God of hosts, I abhor the excellency of Jacob, and hate his palaces. Therefore will I deliver up the city with all that is therein. And it shall come to pass, if there remain 10 men in one house, that they shall die. And a man's uncle shall take him up, and he that burneth him, to bring out the bones out of the house, and shall say unto him that is by the sides of the house, Is there yet any with thee? And he shall say, No. Then shall he say, Hold thy tongue, for we may not make mention of the name of the Lord. For behold, the Lord commanded, and he will smite the great house with breaches, and the little house with clefts. Shall horses run upon the rock? Will one plow there with oxen? For ye have turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into hemlock. Ye which rejoice in a thing of naught, which say, Have we not taken to us horns by our own strength? But behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel, saith the Lord, the God of hosts, and they shall afflict you from the entering in of Hamath unto the river of the wilderness. Chapter 7. The judgment of the grasshoppers and of the fire are diverted by the prayer of Amos. Amaziah complains of Amos. First verse. Thus hath the Lord God shewed unto me, and behold, he formed grasshoppers. In the beginning of the shooting up of the later growth, and lo, it was the latter growth after the king's movings. And it came to pass that when they had made an end of eating the grass of the land, then I said, O Lord God, forgive, I beseech thee. By whom shall Jacob rise? For he is small. The Lord repented for this. It shall not be said, the Lord
Thus hath the Lord God shewed unto me, and behold, the Lord God called to contend by fire, and it devoured the great deep, and did eat up a part. Then said I, O Lord God, seest, I beseech thee, by whom shall Jacob arise? For he is small. The Lord repented for this. This also shall not be, said the Lord God. Thus he shewed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, A plumb line. Then said the Lord, Behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them any more, and the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste, and I will rise against the house of Jeroboam with the sword. Then Amaziah the priest of Bethel sent to Jeroboam king of Israel, saying, Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. For thus Amos saith, Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of their own land. Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, go, flee thee away into the land of Judah, and there eat bread and prophesy there. But prophesy not again any more at Bethel, for it is the king's chapel, and it is the king's court. Then answered Amos and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I a prophet's son, but I was an herdman and a gatherer of sycamore fruit. And the Lord took me as I followed the flock. And the Lord said unto me, Go prophesy unto my people Israel. Now therefore hear thou the word of the Lord. Thou sayest, Prophesy not against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac. Therefore thus saith the Lord, Thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line, and thou shalt die in a polluted land, and Israel shall surely go into captivity forth of his land. Chapter 8. Operation of the poor reproved for mine of God's word. 3:18. First verse. Thus hath the Lord God shewed unto me, and behold, a basket of summer fruit. And he said, Amos, what seest thou? And I said, A basket of summer fruit. Then said the Lord unto me, The end is come upon my people of Israel. I will not again pass by them any more, and the songs of the temple shall be howlings in that day, saith the Lord God. There shall be many dead bodies in every place. They shall cast them forth with silence. Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail, saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn, and the Sabbath that we may set forth wheat, making the ephah small and the shekel great, and falsifying the balances by deceit, that we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes, yea, and sell the refuse of the wheat. The Lord hath sworn by the excellency of Jacob, surely I will never forget any of their works. Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein? And it shall rise up wholly as a flood, and it shall be cast out and drowned as by the flood of Egypt. And it shall come to pass in that day, saith the Lord God, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day, and I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation, and I will bring up sackcloth upon all lions
loins, and a baldness upon every head, and I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not of water, but of hearing the words of the Lord. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst, they that swear by the sin of Samaria, and say, Thy God, O Dan, liveth, and the manner of Beersheba liveth, even they shall fall and never rise up again. Chapter 9. Certainty of Israel's desolation, restoring of the tabernacle of David. First verse. I saw the Lord standing upon the altar, and he said, Smite the lintel of the door, that the posts may shake, and cut them in the head, all of them, and I will slay the last of them with the sword. He that fleeth of them shall not flee away, and he that escapeth of them shall not be delivered. Though they dig into hell, thence shall mine hand take them. Though they climb up to heaven, thence will I bring them down. And though they hide themselves in the top of Carmel, I will search and take them out thence. And though they be hid from my sight in the bottom of the sea, thence will I commend the serpent, and he shall bite them. And though they go into captivity before their enemies, thence will I command the sword, and it shall slay them. And I will set mine eyes upon them for evil, and not for good. And the Lord God of hosts is he that toucheth the land, and it shall melt, and all that dwell therein shall mourn, and it shall rise up wholly like a flood, and shall he drowned, and as by the flood of Egypt. It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth. He that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth. The Lord is his name. Are ye not as children of the Ethiopians unto me, O children of Israel, saith the Lord? Have not I brought up Israel out of the land of Egypt, and the Philistines from Caphtor, and the Syrians from Kir? Behold, the eyes of the Lord God are upon the sinful kingdom, and I will destroy it from off the face of the earth, saying that I will not utterly destroy the house of Jacob, saith the Lord. For lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations, like as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth. All the sinners of my people shall die by the sword, which say, the evil shall not overtake nor prevent us. In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof, and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom, and of all the heathen which are called by my name, saith the Lord that doeth this. Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed, and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. And I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities and inhabit them.
and they shall plant vineyards and drink the wine thereof. They shall also make gardens and eat the fruit of them, and I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land which I have given them, saith the Lord thy God. Redane kiara se redin idian se ledare kianzo orobo blat orian se et con era se dian se det orian se kial re. आमोस 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय 9 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पश्चाताप करने का आह्वान 5 अध्याय पहले वचन से। हे इज़राइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी, वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। वाह, वंडरफुल। 4 वचन देखिए। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। थैंक यू जीसस। बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, और न बेरशेबा में को जाओ, और न बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु न पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी है। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। ये बात ध्यान रखो, फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इसको धर्मियों को देखो सताया जाता है, घूस लिया जाता है, ठीक है, और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ा जाता है। ये सब जो दुष्टता के जगत के लोग हैं वो ये सब करते हैं, ओके, ये उनके काम है। तो इसकी वजह से धर्मियों को सताओ, ऐसे लगता है कि क्या प्रॉब्लम है हमारा, हमने क्या किया, हमने किसका क्या किया, क्या ये हमारा कर्ज है, क्या ये हमारा लाइफ का कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारी मानसिकता का प्रॉब्लम है, क्या हम खोजते रहते हैं, है ना। अलग अलग तरह से हम अपने बारे में बातें करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ये वैसी बात नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर ने ओपनली लिखा है। देखिए क्या लिखा है 10 वचन से, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। 9 वचन, वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता और गढ़ का भी सत्यानाश करता है।
ओके, ये वचन जो है आप लोगों को जब प्रार्थना करते हैं तो मालूम रहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर शत्रु को किस प्रकार का सामना करता है। हमको परवाह नहीं है। देखिए, जब मैं परमेश्वर से जब मैं बातें करती हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ बातें करते समय मुझे इतना कुछ मालूम पड़ जाता है कि मुझे समझ में आ जाता है कि मूर्खता है शैतान का सब काम, ठीक है, मूर्खता है। अब देखिए, और जब आप बोलते हैं ना कि मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, अगर ये इकट्ठे कर दिए जाए तो ये सब क्या है? बैड न्यूज़ है ना। तो हर एक बैड न्यूज़ के साथ एक शैतान का पावर भी कनेक्टेड रहता है। वो बैड न्यूज़ आने के बाद किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, वो बैड न्यूज़ कुछ ऐसी होती है जिसकी डेथ हो जाती है। ओके, वो बैड न्यूज़ कुछ ऐसी हो जाती है कि उसका मन व्याकुल हो जाता है। ओके, कुछ बैड न्यूज़ ऐसे होते हैं जिसके कारण इंसान डर के मारे कंपाने लगता है। ओके, कुछ बैड न्यूज़ ऐसे रहते हैं कि जिसके आने के समय के पहले ही लोगों को एहसास होने लगता है कुछ तो बैड न्यूज़ आ रहा है, कुछ तो बैड न्यूज़ आ रहा है, कुछ तो बैड न्यूज़ आ रहा है। ओके, चेतावनी मिलने लगती है उनको, अलर्ट मिलने लगता है उनको, कुछ तो होने जा रहा है, कुछ तो होने जा रहा है। ये सब स्पिरिट्स है, बैड न्यूज़ के साथ कनेक्टेड स्पिरिट्स है। ओके, बैड न्यूज़ अकेला न्यूज़ होके नहीं आता है, बैड न्यूज़ के पीछे एक स्पिरिट रहता है। इसके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आपको डरा देते हैं, इसके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आपके हियाव तोड़ देते हैं, आपका हिम्मत तोड़ देते हैं, क्योंकि ये मतलब ही है, शैतान का तरीका है ये, आपको कुछ सुनाने का और उसके सुनने के बाद कुछ असर डालने का। ओके, आपके अंदर सुनने के बाद असर आएगा, ये शैतान का प्लान रहता है। ओके, तो कुछ लोगों को कुछ ऐसे न्यूज़ है जो सुनाने के बाद डेथ हो जाती है। ओके, कुछ लोगों को ऐसे कुछ न्यूज़ है जिसको सुनने के बाद एक डेडलाइन मिल जाएगी। ओके, जिसको सुनने के बाद हार्ट अटैक आ जाएगा, या जिसको सुनने के बाद व्याकुल हो जाएंगे, जिसको सुनने के बाद डर के मारे कंपाने लगेंगे। ओके, हर एक न्यूज़ के पीछे, बैड न्यूज़ के पीछे एक पावर शैतान लगाता है। समझ में आया? तो मुझे परमेश्वर ने यही बताया कि देखो, जब आपको कोई बोलता है ना कि आपके बारे में ऐसा ऐसा प्लान किया है, कोई भविष्यद्वक्ता बता देता है, या कोई भी बता देता है आपको, परमेश्वर का जन या कोई भी बता देता है कि आपके बारे में ऐसा ऐसा प्लान लग गया है। ओके, तो अब ये प्लान लग गया है, जब वो बता रहा है तो सबसे पहले वो प्लान क्या है आप ध्यान दीजिए, आपको महसूस में मालूम पड़ेगा। ओके, जब आप उस प्लान को सुनते हैं तब आप में क्या शुरू हो जाता है? चिंता, व्याकुलता, डर या हिचकिचाहट, गड़बड़ी, क्या शुरू हो जाता है? ये सब वो प्लान के अंदर की शक्तियाँ हैं। समझ में आया? तो अब क्या भविष्यवाणी बोलने वाला भविष्यद्वक्ता झूठा है और उसने ये शक्तियों को आपके लिए दिया? ऐसा नहीं है। ओके, भविष्यद्वक्ता सिर्फ आपको बताया कि ऐसा ऐसा प्लान शत्रु करता है, लेकिन अब आपको उस प्लान के पीछे कौन से शक्तियाँ हैं वो आपके फीलिंग्स में आपको मालूम पड़ेगा, महसूसीकरण में आपको मालूम पड़ेगा। ओके, उसके बाद का समय आपको बताएगा कैसे वो स्पिरिट आपको ओवरटेक कर रहे हैं। ओके, आप हियाव छोड़ रहे हैं क्या? आप डिप्रेस हो रहे हैं क्या? नर्वस हो रहे हैं क्या? आप उसके बारे में कैसे चिंता कर रहे हैं? आप उसके बारे में कितना समय व्यस्त कर रहे हैं? सोचों के अंदर कितना उसके बारे में आप ख्याल कर रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो जाता है? वो स्पिरिचुअल किंगडम आपका कैच करता हुआ जा रहा है, आपके ऊपर छाता हुआ जा रहा है। ओके, आप उसके छाते के नीचे आप होते जा रहे हो। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने आप को घसीटते हुए वो स्पिरिट आपको लेके जाते हैं। समझ में आया? और वो अंत देते हैं, जिसने वो बैड न्यूज़ दिया उसका जो मनोकामना रहेगा वो पूरा हो जाता है। समझ में आया? तो आपको हमेशा याद रखना, ये वर्ल्ड दुष्टता का है, ये जगत अंधेरे का है। ओके, और यीशु ने इतना ओपनली लिखा है कि हमारे इर्द गिर्द भेड़िया है जो भेड़ को खा जाते हैं। ओके, तो इससे बड़ी बैड न्यूज़ क्या हो सकती है कि चोर आता है चोरी नाश घात करने के लिए? इससे बड़ा बैड न्यूज़ क्या आ सकता है?
है ना। तो इसके अलावा कुछ बैड न्यूज़ नहीं है। शैतान खुद बैड न्यूज़ है। ओके, इस जगत के अंदर अंधेरा खुद बैड न्यूज़ है। अपने अंदर ही वो अपनी शक्तियों को लिए बैठा है। ओके, तो आपको और एक्स्ट्रा कुछ नमक मिर्च लगाकर उसको बैड न्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना समझ जाओ, आप बैड न्यूज़ के अंदर अपने घर बनाए हुए बैठे हैं। ओके, अब बैड न्यूज़ आपको उठ के अगर अटैक करता है, आप तक चल के आता है, तो वो बैड न्यूज़ का पावर आपको असर नहीं करना चाहिए। आपके अंदर गुड न्यूज़ है। आमेन। हमारे अंदर शुभ संदेश है। हालेलुया। हमारे पास अगर शुभ संदेश है तो उसके फीलिंग्स हमको मिलना चाहिए। यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो हमारा हियाव बंधाता है, वो हमारा मनोबल बढ़ाता है, वो हमारी ताकत है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, उसकी धार्मिकता मुझ में है, उसके काम मुझ में होते हैं, उसकी इच्छा मुझ में होती है। हर प्रकार से आप अपने अंदर ये बात को लिए बैठिए। ओके, कि हर समय परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी सहायता है, परमेश्वर आपके गुण है, परमेश्वर आपके संगति में है, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको त्यागना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके ऊपर क्रोधित नहीं है। जब ये फीलिंग्स आपके अंदर आती है तो बैड न्यूज़ सत्यानाश हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये तरह से समझेंगे नहीं तो आप शैतान के जो बैड न्यूज़ है उसके छाते के नीचे जाते जाते आपको जैसा घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। ओके, मत करो ऐसा। ओके, आपके लिए परमेश्वर का न्यूज़ मौजूद है जिसको कहा गया है गुड न्यूज़। हालेलुया, शुभ संदेश कहा गया। तो ये फिर हमारी बातें होती है कि हम अपने छाए हुए स्थान के बाहर जाएंगे तो प्रोटेक्टेड नहीं है हम। ओके, जो परमेश्वर के छाया हुआ स्थान है उससे बाहर रहेंगे हम प्रोटेक्टेड नहीं है। ओके, बैड न्यूज़ अनप्रोटेक्टेड एरिया है। ओके, गुड न्यूज़ प्रोटेक्टेड एरिया है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल किंगडम है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, धर्मी को सताया जाएगा और घूस लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा, फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ा जाएगा। तो ये फाटक कहाँ है, धर्मी कौन है, आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए है जो धर्मी कहलाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के जन है, यीशु मसीह के आत्मा से नया जन्म पाया हुआ लोग है। ये धर्मी जनों के बारे में कहा गया है कि आपको जो सताया जाने वाला है, तो ना ही आपका श्राप काम आने वाला है, ना ही आपके कोई प्रकार की गलतियां काम आने वाली है। कोई कारण नहीं है आपको सताने के लिए, लेकिन लिखा गया है वो पूरा होगा। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जाना लिखा गया था, उसने वो आज्ञा पालन किया और नम्र रहा और वो पार हो चुका उसमें से, और उसने 1 मिनट भी अपना हियाव टूटने नहीं दिया। आमीन। मरने तक, मृत्यु तक उसने सब कुछ सह लिया। समझ में आया? तो आपको ये सीक्रेट मालूम होना चाहिए। क्या यीशु को नहीं मालूम था क्रूस के ऊपर उसको टांगा जाने वाला है? क्या यीशु को नहीं मालूम था? वो तो सारी भविष्यवाणी अपने मुंह से बता रहा था कि वो समय रहने वाला है, ऐसे ऐसे समय रहने वाला है, और ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा जाने वाला है, इस प्रकार से मेरा होने वाला है। वो खुद अपनी स्टोरी खुद बता रहा था कि आने वाला समय उसका कैसा रहने वाला है ना। तो इसका मतलब उसके अंदर खौफ नहीं था, लेकिन ये भी लिखा है कि उसने ऐसे व्याकुल होकर प्रार्थना की कि उसका जो खून के बूंदों के समान उसके पसीने के बूंद निकलने लगे थे। इसका मतलब बैड न्यूज़ की शक्तियाँ उसको भी सता रही थी, बैड न्यूज़ की शक्तियाँ उसके ऊपर छा जाने की कोशिश कर रही थी, उसके फीलिंग को वो टच कर रही थी। ओके, इतना व्याकुल होके प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? वो बैड न्यूज़ की गंभीरता उस समझ रहा था। ओके, अगर वो गंभीर नहीं रहता तो उसने खड़े खड़े प्रार्थना करके छोड़ दिया होता बैड न्यूज़ को, है ना। लेकिन बैड न्यूज़ की गंभीरता उसको मालूम थी। उस गंभीरता को वो परमेश्वर के सामने बयान करते समय उसके अंदर का जो स्ट्रेस लेवल था इतना ज़्यादा हो चुका था उसके अंदर का कि उसके पसीने के जो बूंदे हैं वो खून के रंग से निकलने लगे थे। ओके, यानी इतना वो व्याकुलता से परमेश्वर के सामने बैठ के उस बैड न्यूज़ का वर्णन, उसको गंभीर, उसको सीरियसली लेते हुए परमेश्वर के सामने उसके बारे में चर्चा कर रहा था।
हालेलुया। तो यही तो प्रार्थना है। आपके पास कौन सी बैड न्यूज़ है, आप अगर वो साधारण है, आसानी प्रार्थना करके हो जाएगा सॉल्व। लेकिन अगर वो बहुत गहरी बैड न्यूज़ है जिसकी गंभीरता आपको मालूम पड़ रही है कि इसको साधारण तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए परमेश्वर के सामने नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका अंदर का फीलिंग आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बैठ के क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए और वर्णन करना चाहिए। खुदा ये ऐसा ऐसा वर्णन करना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। खुदा यहाँ पे मैं जानता हूँ कि तू सबसे अच्छा परमेश्वर है। अब क्या हो जाता है, आप बैड न्यूज़ को डील करना शुरू करते, निपटना शुरू करते हैं। ओके, जैसे जैसे आप निपटते जाते हैं वैसे वैसे परमेश्वर का छाया हुआ स्थान बैड न्यूज़ को ओवरटेक करना शुरू कर देता है। बैड न्यूज़ है, चाहे वो इंच भर हो चाहे वो फुट भर हो, फर्क नहीं पड़ता है। बैड न्यूज़ का अर्थ है आपको हिला देना, बैड न्यूज़ का अर्थ है कि आपको डिस्प्लेस कर देना, अपने स्थान से आपको स्थिर कर देना, खत्म। बैड न्यूज़ के पास दूसरा कोई कारण नहीं है। ओके, आपको मिटा देने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं रहता है उसके पास। ओके, आपकी खुशियाँ मिटाना, आपके पैसे मिटाना, आपका कुछ अच्छा रिश्ता मिटा देना, उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। बैड न्यूज़ इज जस्ट सिंपली फुलिश थिंग। सैतान उसको सिर्फ हमको परेशानी में डालकर रखने के लिए ये सब करते रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए, धर्मियों को सताया जाएगा तो आप ये मत ढूंढिए कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कैसा है, इसके पीछे कितने जन है, इसके पीछे अरे लिख दिया है धर्मी को सताया जाएगा, तो सताओ को आपने डील करना सीखो। ओके, आप ये मत बोलो कि मेरे घर के लोग सता रहे, मेरे बाजू के लोग सता रहे, मेरे ऊपर के लोग सता रहे, नीचे के लोग सता रहे, साइड के लोग सता रहे, सामने के लोग सता रहे, पीछे के लोग सता रहे। सताव है, नगर सता रहा है, शहर सता रहा है, एरिया सता रहा है, शट अप। ओके, सताने के लिए सिर्फ नाम दिए जाते हैं, कारण कुछ दिए जाते हैं, लेकिन वचन कहता है धर्मियों को सताया जाएगा। तो बात बंद करो अपने अंदर से कि मेरा क्या गलती है। ओके, मुझे कब इसमें से आराम मिलेगा, नहीं, आराम मत देखो, आप निपटते निकल जाओ, आगे निपटते निकल जाओ। ओके, कैसे निपटना है, अगर सताव गहरा लग रहा है, आपको परेशान लग रहा है, असहनीय हो रहा है, बैठ जाओ, परमेश्वर के साथ बात करो, सताव के बारे में बात करो, परमेश्वर की बातें बताओ। और परमेश्वर का आत्मा, भजन संहिता 91 पढ़ के देखो वो कैसा पार किया उस समय को जब वो बैड न्यूज़ का सामना करने के लिए आया हुआ था। ओके, फिरौन बैड न्यूज़ था उसके लिए, ठीक है। तो फिरौन के पास जाना और फिर परमेश्वर के कामों के बीच में बने रहना, ये सच में उसका ये बैड न्यूज़ का सामना करने का तरीका परमेश्वर की ओर से किया गया इंतज़ाम था। ओके, आप उसको सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बैड न्यूज़ को आप कैसे सामना करना चाहिए। ओके, भजन संहिता 91 में देखेंगे तो कुछ समय के लिए परमेश्वर बात कर रहा है, कुछ समय के लिए खुद मूसा बात कर रहा है, कुछ समय के बाद में पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कुछ समय के बाद कोई भी नहीं है वहाँ पर, परमेश्वर सब कुछ अरेंज कर रहा है प्रॉमिसेस देकर। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए, जब आप प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, अपने वर्णन बताना शुरू करते हैं परमेश्वर को, तो वो राशन लिस्ट नहीं होती है, क्योंकि यीशु मसीह भी वर्णन किया है परमेश्वर के सामने, हमारे दुखों के बारे में उसने हमारे बारे में वर्णन करके बताया है, उसके खुद के बारे में वर्णन करके बताया, उसने इंतज़ाम सबके बारे में बताया, सब कुछ बताया, खून के बूंद जैसे उसके पसीने के बूंद निकले। तो इसका मतलब क्या, वर्णन करना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, उसको राशन लिस्ट का नाम नहीं बोल सकते, वही प्रार्थना है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध एस्टैब्लिश होना चाहिए। और फिर देखो, फिर परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों में से बात करता है, फिर हम खुद अपने वर्णन कर रहे होते, हमारे ही मुंह में से परमेश्वर का आत्मा बात करने लगता है, हमारे ही लिए बात करता है, हमको ही सुनाता है, हम परमेश्वर के साथ बात करते। इतना सुंदर वो प्रार्थना का समय बन जाता है कि देखते रह जाते हैं हम किस प्रकार से डील कर रहे हैं ऐसे बैड न्यूज़ का।
समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको जो सच्चाई है उसको आपने एक्सेप्ट करना पड़ता है। यीशु ने सच्चाई को एक्सेप्ट किया था कि उसको क्रूस का बलिदान लेना पड़ेगा, उसके बाद मृत्यु में उसको उतरना पड़ेगा, उसके बाद मृत्यु में से इंतजार लगाना पड़ेगा कब पवित्र आत्मा आएगा और उसे मृत्यु में से जिलाएगा। समझ में आया? तो बैड न्यूज़ का आपको स्टेप बाय स्टेप वर्णन परमेश्वर दिखा देता है। आपको सिर्फ उस स्टेप में से निकलते जाना है, निकलते जाना है, निकलते जाना है। पवित्र आत्मा का इंतजार लगाना है कि वो आपको वहां से उठाए और उस लेवल से ऊंचा करे। आमीन। अब यीशु मसीह का लेवल ऊंचा हो गया स्पिरिचुअल जगत में, तो बैड न्यूज़ आपको ऊंचे लेवल में जाने का जो कहते हैं ना टनल है, ओके, वो टनल में से, वो गुफा में से आप निकलते हैं जिसके अंदर अंधेरा छाया हुआ है, जो आपको पार जाने के लिए मना कर रहा है। ओके, बैड न्यूज़ हमेशा आपको तरक्की पाने के लिए मनाही करने वाला एक हथियार समझो। ओके, तो आपको कभी भी बैड न्यूज़ आपको खुशी देने के लिए नहीं रहता है। बैड न्यूज़ आपको रोकने के लिए रहता है, आपको पीछे हटाने के लिए रहता है, वो आपके हियाव को तोड़ने के लिए रहता है, आपको कमज़ोर बना के उसके कब्जे में रखने के लिए रहता है। अब आपकी मर्जी, आप इसे पार करना चाहते हैं या नहीं। पार करना चाहते हैं, बैड न्यूज़ को आप मायने मत दीजिए। आपके अंदर उसके कैसे फीलिंग ला रहा है बैड न्यूज़, उसको देखिए। अगर वो गहरी बनती जा रही है फीलिंग, डर भरता जा रहा है, व्याकुल हो रहे, बहुत ज़्यादा आपका हियाव टूट रहा है और बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहे आप उसके बारे में चिंतन करने में, तो इसका मतलब है वो आपके ऊपर प्रबल होता जा रहा है। आपको प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने आपके वर्णन बोलना ज़रूरी है। लॉर्ड, ये एरिया ऑफ लाइफ है जो मुझ पर हावी हो रहा है, मेरी सहायता करो, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता है इसके पार कैसे जाना है। देखिए, फिर परमेश्वर का आत्मा आपके प्रार्थना के शब्दों में उतर कर आएगा और वो आपके लिए बात करेगा। ओके, वो प्रार्थनाओं को बयान करेगा। ये सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो परमेश्वर हमसे करवाता है और हम बैड न्यूज़ को थप्पड़ मार के गुड न्यूज़ में हम बदल जाते हैं। हालेलुया। बैड न्यूज़ इज बैड न्यूज़, फॉरगेट अबाउट इट्स इंटेंसिटी। ओके, उसके इंटेंसिटी, उसके तीव्रता को आप मायने मत दीजिए। आंधी और तूफान की तीव्रता उग्रता से भरी हुई होती है, उसमें कोई प्रकार की सुंदरता नहीं रहती है, कंप्लीटली आपको नापसंद हो जाएगा। ऐसा ही प्रकार का वातावरण रहता है, उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। आप किसी इंसान को दोष मत दो। ओके, कि कौन आपको क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी को दोष मत दो, क्योंकि बैड न्यूज़ खुद में खुद बदसूरत है, तो उसको करने वाला कितना बदसूरत होगा, सोच कर देखिए। ओके, बैड न्यूज़ खुद में खुद बदसूरत है, तो उसको चलाने वाला, उसको बनाने वाला, मतलब उसका हिसाब जो लेके आपके विरोध आ रहा है, ओके, तो वो कितना बेकार इंसान होगा, है ना। तो इसके लिए आप डरिए मत। ओके, इसके लिए कोई बैड न्यूज़ देने के लिए लोग कभी आगे नहीं जाते, क्योंकि वो बदसूरत रहते हैं। ओके, सिर्फ भविष्यद्वक्ता बैड न्यूज़ बता देते हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं को बैड न्यूज़ बता देना पड़ता है, भाई तेरे लिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से तुझे परमेश्वर सहायता करता है, तू आगे निकल जाना है, परमेश्वर तेरे साथ है। वो हमारा उजियाला हमको देखने के लिए आंखें हैं भविष्यद्वक्ता, ठीक है। वो उजियाले की आंखों से जो बताए हमको मालूम पड़ जाता है और हम आगे निकल जाते हैं। आमीन। लेकिन बैड न्यूज़ लेके कोई किसी के पास जाता नहीं है, क्योंकि उनको पता है इससे ज़्यादा बेकार, दरिद्र और बदसूरत इंसान कोई नहीं जो बैड न्यूज़ लेके जा रहा है। ओके, तो इसके लिए कोई नहीं जाता है बैड न्यूज़ लेके। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए और खुद के साथ स्ट्रगल नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, जस्ट छोड़ देना है कि हमारे लिए रखा गया ये अवस्थाएं है, इसके पार हो जाने का हमारे पास हियाव परमेश्वर देता है। देखिए 13 वचन से, इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हालेलुया। हे लोगों,
बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। यही तो बात काइन को कहा था। तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, प्रभु आपके संग है, प्रभु हम सब के साथ बना रहे, ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ ना। तो यहाँ पे क्या बोला है? तुम्हारा यह कहना सच ठहरे। ओके, अब ये सच ठहरने का समय जो रहता है ये आपको जीवित रखेगा। समझ में आया? ये आपको बचाए रखेगा। ओके, इसीलिए आप बोला करो, प्रभु परमेश्वर आपके संग रहे। ओके, प्रभु यहोवा आपके संग रहे, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे, है ना। बना रहे का मतलब भी वही है कि हमारे साथ संग रहे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? वचन ऐसा कह रहा है, तुम्हारा यह कहना सच हो जाए, है ना, तुम्हारा यह कहना सच हो जाए। हालेलुया। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। ये हो गया वॉरफेयर प्रेयर्स का स्टैंड। ओके, ये हो गया फाइटिंग करने का जगह, जहाँ पे आप जीतना या हारना तय किया जाता है। ओके, जहाँ पर शत्रु भी अपने सारे कामकाज लेके वहाँ पे आ जाता है और हमको भी वहाँ पर जाकर खड़े होना पड़ता है और फिर उस जगह में न्याय होता है। क्या हम जीतेंगे या शत्रु जीतेगा? इसके लिए बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन मुश्किल समय से बच नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं बनता है उनसे, क्योंकि ये फाटक के जगह पर आपका शत्रु प्रबल हो रहा है। परमेश्वर उसकी सुन रहा है। क्यों पता है? क्योंकि मिस्टेक्स बता रहा है। इसके लिए कहा गया विरोधी जो बैरी है, जो शैतान है, वो आपका कंप्लेंट्स करने वाला है, मतलब वो आपके बारे में परमेश्वर के सामने दोष लगाने वाला है। ठीक है, तो वो दोष लगाने वाला जो है वो आपका शत्रु, वो शैतान फाटक में आपके दोषों को परमेश्वर के सामने खड़ा किया है और परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है, अब तो इसको मारना तो मारना है, अब तो इसको परेशान करना तो करना है, अब तो इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि देख इसके ये दोष है। तो वो सारे दोष को हमारे वहाँ लेके जाता है जहाँ पे हमारा एडवोकेट बैठा हुआ है अभी, प्रभु यीशु मसीह। अगर आपको ये एडवोकेट मालूम पड़ेगा तो फिर आप वो फाटक में जाएंगे और बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, अब तू ही हमें बचा सकता है, तेरा खून जो क्रूस के ऊपर बहाया है, तू ही हमारा न्याय चुका सकता है। हालेलुया, तू ही हमें स्थिर कर सकता है। हम माफ़ी मांग लेते हैं, परमेश्वर पिता न्यायाधीश है, तू हमें माफ़ कर दे। ओके, यहाँ पे जो जीत गया जंग को दुनिया घुमा देता है वो। समझ में आया? ये फाटक के जगह में जंग जीतना आप सीख जाइए। ठीक है, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण है उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन को अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं में मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हे इज़राइल के घराने, तुम जंगल में
40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। ओके, तो हमारे पीढ़ियों ने यही किया है, जो परमेश्वर कहता है उसके विरोध काम कर रखे हैं। ओके, तो इसकी वजह से हमारी पीढ़ी में कोई गुड न्यूज़ नहीं आता है। ठीक है, हमारे पीढ़ी के सारे हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए लोग रहे हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पीढ़ी के बंधुआई थे और बंधुआई में पड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको फ्रीडम नहीं दिया, परमेश्वर ने उनकी दुष्टता को आज़ादी नहीं दिया। इसके लिए कोई बीमारी, कोई प्रकार के गरीबी, दरिद्रता, जो कुछ भी है वो उनके लाइफ में दिखता है। ओके, कोई हम अपने अंदर ऐसे घमंड नहीं कर सकते हैं कि हमारी पीढ़ी बहुत अच्छी है, कोई नहीं घमंड कर सकता है। ओके, क्योंकि अगर कोई अपनी पीढ़ी के बारे में बहुत गुण गा रहा है तो भी वो अन्य जाति है, उसने भी किसी ना किसी मूर्तों को चरण पीठ बनाया है, किसी देवता को लिए हुए फिरा है, किसी का जगह में कुछ ना कुछ ऑल्टर बंधा है, कोई ना कोई तंबू बंधा है। हालेलुया। तो इस प्रकार से उसने किसी और की भक्ति कर रखी है, जिसकी वजह से उसकी हैसियत अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, तो वो सारे मार्ग तो परमेश्वर के विरोध के हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर नहीं रहा होगा। हालेलुया। तो सब कुछ जो अन्य जातियों के बीच में भी अच्छा दिखाई देता है, फिर भी आप उसको ये समझ जाइए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर फिर भी है, क्योंकि उनका अच्छा दिखना, अच्छा चलना, अच्छा फिरना भी काम नहीं आने वाला है। रेत पर बंधा हुआ घर है वो। अगर मसीह लोग भी ऐसा कर रहे होंगे कि मसीह है लेकिन सब कुछ वो अपने अंदर ही अंदर कुछ गलत रास्ते चल के अपने विश्वास का दर्जा परमेश्वर में नहीं रख रहे, तो फिर वो भी उतने ही गुनहगार हैं जितना अन्य जाति है। परमेश्वर उनसे भी क्रोधित रहता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जीवन है कि हम परमेश्वर के अंदर अगर छाए हुए स्थान में बैठा रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन हमारी पीढ़ी वैसे नहीं थी, इसके लिए हमारे पीढ़ी में सारे बैड न्यूज़ भरे हैं। इसकी वजह से हमारा शरीर बहुत जल्दी असर कर लेता है अपने ऊपर बैड न्यूज़ को सुनने के बाद। ओके, और उसी में से फिर दुष्ट आत्माएं लोगों को लेकर आती है हमारे खिलाफ। ओके, वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं, वो हमारे बैरी बन जाते हैं, वो हमें घात करने वाले बन जाते हैं, है ना। वो हमारे जीवन को नाश चोरी घात करने के प्लान प्लॉट करने वाले बन जाते हैं, है ना। तो ये दुष्ट आत्माएं उन्हीं पीढ़ियों में से, हमारी जो बीती हुई पीढ़ियां हैं उन्हीं के अंदर से वो दुष्ट आत्माएं हमारा हिसाब लेने के लिए आते हैं। और वही है कि हमको फाटक में खड़े होकर फाइट करना पड़ता है, जो आपने अभी पढ़ा ना, फाटक के यहाँ पे जंग को जीतना पड़ता है। ओके, तो ये जगह में दुष्ट सेनाएं जाती है और बात करती है कि इसके पीढ़ी में इसके लिए हमारे साथ ये प्रॉमिस बांधा हुआ था, ये वाचा बांधा हुआ था और ये तेरे सामने आ गया, मतलब ये हमको छोड़ के तेरे तरफ आ गया, तो अब हमारी वाचा कौन पूरी करेगा, हमारा प्रॉमिस कौन पूरा करेगा। ये तो हमारा हक बनता है कि हमारी सारी जो बातें हैं उससे निकाल ले और फिर वो तेरी तरफ आए। तो अगर हम ऐसा जान गए कि कोई प्रकार के ऐसे फाइट हमारे बारे में फाटक में हो रही है, तो फिर हमने क्या करना चाहिए, हमने पश्चाताप करना है परमेश्वर के सामने। ओके, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को हमने स्मरण करना है और हमने इस बात को जाहिर करना है, परमेश्वर हमारा पुराना मनुष्य मर चुका है। ओके, जिसके साथ ये फाइट लगी थी वो मर चुका है, हम पर उसका क्लेम नहीं है, हम नए सृष्टि है। इसके लिए एड्रेस बदली करो, क्योंकि शत्रु हमारा पुराना मनुष्य के पीछे था, हमारे पीछे नहीं आ सकता है वो। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर शत्रु को हमारा सही एड्रेस दिखा दे। ओके, कि हम कौन है, यीशु मसीह में नई सृष्टि है, और जिसको वो ढूंढ रहे हैं वो पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ कब्र में चला गया है। ओके, खत्म हो चुका है, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने के समय ही वो खत्म हो गया। ओके, अब हम कौन है, नई सृष्टि है। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर को बोलना है, पिता इनको बता दे वो धोखा खा रहे हैं और वो पुराने मनुष्य को ढूंढ रहे हम में, हम वो नहीं है।
है। हालेलुया। तो इसके लिए धर्मी को सताया जाता है तो परमेश्वर हमको उस सताव में बल देता है, क्योंकि हम उनके नहीं हैं। उस सताव के लिए हम शिकार नहीं है। हालेलुया। हम उसके ऊपर चढ़ाई करके आगे जाने वाले लोग हैं। आमीन। इज़राइल का विनाश 6 अध्याय पहले वचन से। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो समरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इज़राइल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नामक बड़े नगर को जाओ, फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कंटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूँ, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहे तो भी वे मर जाएंगे। जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रहे, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जीते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है? तुम ऐसे वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थ्य नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के यहोवा परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। हालेलुया। ध्यान रखिए ये बात को। ओके, जो परमेश्वर के काम बिगाड़ देते हैं, ओके, जो परमेश्वर के लोगों का न्याय विष में बदल देते हैं, धर्म के फल कड़वे बना देते हैं। ओके, ऐसे जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं और फिर मांगते हैं कि इसके चीज़ें मुझे मिलने दे, हाँ 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 उसने तो बोला है, उसके मुंह से तो बोला है, हाँ फिर क्या है, हमको तो लेने का अधिकार है, हम तो लेंगे उससे, हम तो ऐसा ही करेंगे। हम ऐसा जो अपने आप को होशियार दिखाते हैं, ओके, जिसके अंदर कीमत भर की भी वैल्यू नहीं है परमेश्वर के बिना। ओके, ऐसे लोग जब ढीठ पाप कर लेते हैं, अपने अंदर से ढीठ गलत कर लेते हैं, ओके, तो परमेश्वर कहता है, ठीक है तू बहुत ज़्यादा ही आगे जा रहा है। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, एक ऐसी जाति तेरे विरुद्ध दे देता हूँ कि वो तुझे संकट में डाल देगा। हालेलुया। विनाश के 3 दर्शन टिड्डियाँ 7 अध्याय पहले वचन से। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया। अब मुझे आप ये बताओ, जब आप बैड न्यूज़ सुनते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बोल रही थी मैं, कोई बात नहीं, बैड न्यूज़ सुनते हैं तब फील कैसे होता है? और जब मैं आपको ऐसे बोलूँगी, परमेश्वर आपके लिए ये कह रहा है, मैं परमेश्वर कह रहा है ऐसा कि मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करने जा रहा हूँ जो उनको संकट में डालने वाली है, अब आपको कैसा फील होगा? समझ में आया? बस यहीं पे आप जंग जीतते हैं।
समझा? यही भजन संहिता 91 पढ़ना। अब देखो कैसा बोला है परमेश्वर ने, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरे लिए स्वर्गदूत को आज्ञा करूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। कैसा बल चढ़ जाता है। और यही बात फिर हमने क्या पढ़ा 5 अध्याय के, यहाँ पे क्या लिखा था 5 अध्याय के 14 वचन में, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे। हालेलुया। तो हम क्या बोलते हैं, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, यीशु के मार खाने से हम आज़ाद हो चुके, हम आज़ाद हो चुके। ठीक है, अब वचन क्या कहता है? अब कहना तो ये है कि तुम जो कह रहे हो यहोवा तुम्हारे संग है, वह सच ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने घोषणा करना हमारे बल में है, ओके। वचन बोलना हमारे बल में है, ओके। हम करें या नहीं करें उसको, लेकिन फिर उसके बाद का अंजाम लाना वो तो परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। विश्वास करके बोलना यहाँ तक हमारे कब्जे में है, ओके। लेकिन जब बैड न्यूज़ आती है तो आप विश्वास तो छोड़ो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा आपके ऊपर असर कर देती है कि आप डूब जाते हैं, ओके। डूब जाते हैं, दुख के अंदर डूब जाते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, संघर्ष में पड़ जाते हैं। ए खुदा मेरी गलती क्या है, ए खुदा मेरी पाप क्या है, ओके। क्योंकि फाटक के सामने फाटक में युद्ध हो रहा है, ओके। फाटक में शत्रु आपको आगे जाने नहीं दे रहा है और आप पछाड़े जा रहे हैं वहाँ पर, ओके। अब वहाँ से छुटकारा चाहिए तो अब आप क्या करते हैं, खुदा माफ़ कर दे मेरी गलती को, खुदा मुझे छुड़ा, खुदा मेरी हालत ख़राब है, खुदा मेरे लाइफ को ऐसे हो रहा है। और यही तो क्या कर लिया था यीशु मसीह ने, परमेश्वर के साथ बैठ के यही काम किया था। और इतना ज़्यादा उसने परमेश्वर के अंदर अपने आप को उंडेला था कि उसके पसीने के बूंदे लहू के बूंदे जैसे निकलने लगी। आमीन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बैड न्यूज़ आपको ख़त्म करने के लिए ही होता है। आप उसको लेके परमेश्वर के सामने बैठोगे, आप उसको गुड न्यूज़ में बदल दोगे। हालेलुया। आप उसको गुड न्यूज़ में आगे निकाल दोगे, ओके। तो इसके लिए आप उसको आते हैं बदसूरत बन के, बदल के जाएंगे सुंदर बन के, ओके। तो इसके लिए आप उन लोगों की चिंता मत करो जो बैड न्यूज़ के लेकर चलने वाले परमेश्वर शैतान ने बनाया हुआ एजेंट है, ओके। शैतान ने तैयार किया एजेंट रहता है, वो बैड न्यूज़ को लेकर आ जाता है। हाँ चलो अभी इसके बारे में ऐसा ऐसा है, चलो इसके घर में कुछ रख के जाना है, इसके घर में कुछ छिड़क के जाना है, इसके घर में कुछ ये करना है, चलो उसके फ़ैन को यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, और फिर इसके ऊपर घर के ऊपर दरवाजे के ऊपर टक टक करना है, और इससे करना है, उससे करना है। अरे करो भाई करो, क्योंकि तुम बैड न्यूज़ के एजेंट हो। हाँ, तुम्हारे पास बदसूरती है, तुम्हारे कामों में रेत का घर है जो आंधी तूफान का सामना नहीं कर पाएगा, ओके। तुम्हारा गिरना निश्चित है। इसके लिए हमको एजेंट से कोई दुश्मनी नहीं है, आमीन। अब हमको क्या करना है, उस बैड न्यूज़ को लेके परमेश्वर के सामने बैठना है। अब क्या हो जाएगा, वो बैड न्यूज़ फेल हो जाएगा, वो किया कराया फेल हो जाएगा, और गुड न्यूज़ हमारे सामने है। तो हम उन लोगों को हाय हेलो करते हुए दिखाई देंगे, हेलो प्रभु आपके साथ है, ओके। तो ये हो जाएगा कि वचन कहता है जो तुम कह रहे हो वो सच हो जाए कि प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तो इस तरह से उनको हम गुड न्यूज़ सुनाते रहेंगे, यीशु प्रभु है, सच्चाई, मार्ग, जीवन यीशु है। हालेलुया। तो हम यही उनको गुड न्यूज़ देते हुए आगे जाने वाले हैं, और उनके नज़ारे बैड न्यूज़ नहीं रहेंगे, उनके नज़ारे गुड न्यूज़ में बदलते जाएंगे। उनका विश्वास यीशु में होता जाएगा, वो यीशु के नीचे वो अधीन हो जाएंगे और परमेश्वर के कामों को वो स्वीकारेंगे। हालेलुया। इतना आसान है मसीही जीवन, अगर सही ढंग से हम फाटक में जंग जीतना सीख जाएंगे तो, ओके। धर्मियों को सताया जाता है, इसको सीख लेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि उसको कैसे निपटना है, ओके। जैसा यीशु ने निपटा, उसको पता है उसको क्रूस के मौत में जाना है, तो उसने कैसा निपटा, उसको कैसा परमेश्वर को थामे रहा, वो पकड़
पकड़ के रहा, हियाव के साथ रहा। ओके, उसने दोष नहीं लगाया परमेश्वर को, क्या जिंदगी दिया है तूने मुझे, क्या करके रखा है, मेरा हालत कैसा, तू परमेश्वर है, क्या है, तू है कहाँ, क्या कर रहा है तू, कुछ नहीं। ओके, वो जानता था, वो उसका स्टार्ट से एंड सब कुछ जानता था। जानते हुए उसने उस रास्ते को पार करना सल्यूट करने वाली बात है। ओके, तो आप जानते हैं धर्मियों को सताया जाएगा, घूस लिए जाएंगे, तो खत्म करो ना बात को, आप क्यों उसकी चर्चाओं को करेंगे, है ना। आप पार होने की चर्चाएं करो। पार कैसे हुआ जाता है, जैसे साम्स 91 में मूसा के वचनों में लिखा है। ओके, जैसा हमने यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करते हुए देखा है। ओके, उसे ही कहते हैं पार जाने का रास्ता। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है कि हम गुड न्यूज़ के लोग हैं, हम बैड न्यूज़ के लोग नहीं हैं। आमेन। रिबांता खबर रखा सिहालो रोबो ओखोसियांतु खंबा आसा। विनाश के 3 दर्शन टिडिया 7 वचन से 7 अध्याय पहले वचन से। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की, और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कितना निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा, ऐसी बात अब न होगी। आग 4 वचन से आगे। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा। हालेलुया। ये मुकद्दमा आ गया, फाटक समझ गया, अब मुकद्दमा आ गया। हालेलुया। मुकद्दमा किसके बीच में है, देखिए, और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कैसा निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर ना होगी। साहुल 7 वचन से आगे। देखिए, ये सब क्या है पता है, जब परमेश्वर निकल पड़ता है ना हमारे शत्रुओं के विरोध, तब परमेश्वर कहता है ये मुकद्दमा कैसा जीता जाता है। देखिए, जब शत्रु हमारा फाटक में जाके हमारे दोष बताता है, ओके, और परमेश्वर को बोलता है ये इसको तो अब मेरे हाथ में दे देना है, क्योंकि इसके पीढ़ियों ने क्या किया है, मेरे साथ वाचा बांधा है, अब ये छूट गया मेरे हाथ से, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। ओके, इसका मैरिज होने नहीं दूंगा, इसके बच्चे होने नहीं दूंगा, इसकी प्रॉपर्टी बढ़ने नहीं दूंगा। ओके, इसके जॉब जाने नहीं, आगे उसको अच्छा जॉब मिलने नहीं दूंगा, लोगों के फेवर इसको मिलने नहीं दूंगा। ये सारे बातें वो बताता है, इसका दोष बताता है कि इसके ना पुराने लोग थे ना, वो पीढ़ियों के, उन्होंने मेरे साथ वाचा बांधा था और वो वाचा उन लोगों ने पूरा नहीं किया, तो अब मेरा हिसाब बनता है, मेरा हिसाब चुकता होने दे, फिर बाद में तेरे को जो चाहिए वो लेके जाए इनको। ओके, लेकिन मेरा हिसाब चुकता नहीं करेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा इनको। ये फाइट हो रहा होता है फाटक में। अब मैंने क्या बोला आपको, आपने क्या करना है, जब आपको मालूम पड़ता है शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, समझ जाओ फाटक में फाइट हो रहा है। ओके, ये साधारण बात नहीं है, वो बात है जो गतसमनी के बाग में यीशु ने जंग जीती थी, वो जंग आपकी है अभी। ओके, इस समय मूसा ने साम्स 91 के अंदर बता दिया किस प्रकार से उसने परमेश्वर से चर्चा की। गतसमनी बाग में आपको बता दिया यीशु ने किस प्रकार से यीशु ने वो जंग को परमेश्वर के मदद से जीतने का प्रार्थना लगा दिया था। आपको प्रार्थना लगाना है। ओके, कैसे प्रार्थना लगाओगे, प्रभु मुझे माफ़ कर, जो भी मेरी गलती है, ओके, मुझे इसमें से बाहर निकाल, मुझे आगे लेकर चल, मुझे भविष्य दे, मेरा समय बदल, ओके, और मेरे लिए पॉजिटिव बना कुछ, तो मेरा हियाव टूटने मत दे, मेरी हिम्मत बढ़ा, क्योंकि ये जो बैड न्यूज़ है इसके अंदर के पावर मुझ पर छा ना जाए, वो मुझे ओवरटेक ना करने पाए। तेरा पॉजिटिव पावर मुझ में बढ़ा, तेरी ताकत हियाव मुझ में बढ़ा, और यही बल है मुझे आगे लेकर जाने का। आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, यीशु मसीह बोलता है उसने माफ़ी मांग लिया है, पिता अब तू न्यायाधीश है, तो अब ये फाटक के अंदर जो दोष लगाने वाला बैठा हुआ है उसको बता दे कि हमारी माफ़ी हो चुकी है, अब तेरा दोष खत्म,
अब तो हमको रोक नहीं सकता है, उस इंसान को आगे जाने दे। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर मुकद्दमा लड़ने के इंतजाम लगाता है। आमीन। इस तरह से परमेश्वर हमारी जंग जीतता है। हालेलुया। देखिए साउल 7 वचन, उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साउल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साउल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साउल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा, मैं अब उनको न छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थल उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे और मैं यारोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। ओके, अब ये सारा क्यों करता है परमेश्वर ऐसा? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। ओके, वो यस को यस कहेगा और नो को नो कहेगा। ओके, बीच में अटका हुआ पड़ा नहीं रहता है वो। ओके, अगर शैतान मुकद्दमा लड़ने के लिए आ गया तो वो शैतान की सुनेगा। ओके, और फिर अगर हमने पापों की माफ़ी मांगी तो वो यीशु की भी सुनेगा। समझ में आया? तो अगर शैतान ने मुकद्दमा लगा दिया, हमारे विरुद्ध दोष लगा दिया और परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और हम माफ़ी नहीं मांग रहे, तो यीशु कुछ नहीं कर सकता है। ओके, इसकी वजह से लोग जंग हार जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, अरे भाई क्या जाता है आपका, घुटने लगा दो, घुटने टेक दो और हाथ उठाकर बोलो, प्रभु यीशु माफ़ कर मेरे गुनाह। ओके, अब मैं तो नहीं जानती हूँ कि शत्रु कौन सा दोष मेरा तेरे सामने लाया हुआ है, लेकिन इतना तो निश्चित मुझे पता है, ये बिना मेरे दोष के तेरे सामने नहीं आएगा। हालेलुया। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर और मेरे लिए मुकद्दमा जीत। ओके, मेरी सहायता कर प्रभु, मैं इस जंग को जीत नहीं सकती हूँ, इसके दर्द भारी है खुदा, इसकी पीड़ाएं ज़्यादा है परमेश्वर, ये असहनीय हो जाता है मुझे, मेरी सहायता कर। समझ में आया? इस प्रकार से आप प्रभु यीशु के सामने गिड़गिड़ाते हो। अब प्रभु यीशु बोलता है, पिता उसने माफ़ी मांग ली है, अब तेरा हथियार पीछे ले। ओके, तब वो अपने हथियार को पीछे लेता है। नहीं तो वो देखो, न्यायाधीश पनिश करता है और न्यायाधीश न्याय देता है ना? तो शैतान मुकद्दमा लेके जाएगा तो परमेश्वर न्याय देता है उसको। ओके, वो भी उसके ही लोगों के ऊपर देखो तलवार चला रहा है, उसके ही लोगों के ऊपर वो आग लेके भागा, उसके ही लोगों के ऊपर वो साहुल लेके भागा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, न्याय न्याय है, वो सच्चाई और धर्म और न्याय से प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। ओके, वो चापलूसी करने वाला परमेश्वर नहीं है। ओके, कभी इधर कभी उधर वाला वो परमेश्वर नहीं है। ठीक है, अगर शैतान आपके बारे में कोई दोष लेके आगे जाएगा तो वो गिराना एक ही रास्ता है उसका दोष गिराने का। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आपको परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। ओके, इसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला? जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीषें दो, श्राप मत दो। क्यों पता है? ताकि जब वो मुकद्दमा लड़ने के लिए आएगा मेरे सामने तो मैं उसको बता दूंगा, भाई उसने तो माफ़ किया है तुझे। ओके, तो उसका जायज हक बनता है कि वो आगे निकले। हालेलुया, तब शत्रु को पीछे हटा देता है। वो न्याय का परमेश्वर है। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ, मत्ती के अंदर जो बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट है उसको चलिए आप, वो आपका न्याय चुकाने का रास्ता है। वहाँ से फाटक के जंग भारी मात्रा में जीते जाते हैं, भयानक मात्रा में जीते जाते हैं, भयानक, आप बयान नहीं कर सकते, ऐसे धड़ाधड़ जंग जीते जाते हैं वहाँ पर। ओके, लेकिन बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस नहीं चलेंगे ना, जो मत्ती के 5, 6, 7, 8, तो फिर यहाँ पे जंग जीतना भारी मुश्किल हो जाता है। ओके, अब फिर बचा क्या प्रार्थना करने के लिए? बचा यही है कि आप वर्णन करके परमेश्वर को बताते, खुदा बाप ये तो असहनीय है।
हालेलुया। ये तो भारी पड़ रहा है मुझे सहन करना, ओके, मैं इसे और लेके नहीं चल सकता हूँ, कुछ इंतज़ाम कर मेरे खुदा। इस प्रकार से हमारी वार्ता परमेश्वर सुनता है, हालेलुया, और वो उस प्रकार से हमारे लिए जल्दी 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 स्टेप उठाता है और हमें छुड़ा लेता है, हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर भेदभाव नहीं रखता है किसी का, ओके, वो किसी का बंधा हुआ नहीं है, हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो धर्मी के लिए भी अधर्मी के लिए भी मेह बरसाता है, आमीन। वो धर्मी अधर्मी दोनों के लिए दया करता है, हालेलुया। और जीतता कौन है? जो नम्र है वो जीत जाता है, ओके। जो माफ़ी मांग लेता है वो नम्र हो जाता है और जीत जाता है। जो बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस में चलता रहेगा वो नम्र रहेगा, हालेलुया। जो उसके बाहर चला जाएगा वो घमंडी हो जाएगा, ओके, और वो जंग हार जाएगा, आमीन। हम आगे पढ़ेंगे आमोस और अमस्या 10 वचन से आगे। तब बेतेल ने याजक अमस्या ने इस्राएल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझ से राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यो कहता है, यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहाँ रोटी खाया कर और वही भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं न तो भविष्यद्वक्ता था और न भविष्यद्वक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यो कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। फलों से भरी टोकरी का दर्शन 8 अध्याय पहले वचन से। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। इस्राएल का पतन 4 वचन से आगे। यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शकेल की को भारी कर दे और छल से दंडी मारे कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियाँ देकर मोल ले और निकम्मा अन्न बेचे। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि न कंपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सबको
कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सबके सिरों को मुंडाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। देखो, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। हालेलुया। अब देखिए, जब आप बैड न्यूज़ सुनते हैं ना, तो उन्होंने किसी ना किसी का पूजा या कोई प्रकार का अर्चना किया होता है, कोई भक्ति की होती है उन्होंने, ओके, और शक्ति आई होती है उनके अंदर, ओके, और वो सबकी शपथ खा के निकलते हैं, ठीक है। और फिर बाद में उनको पता रहता है कि अब हम बैड न्यूज़ लेकर इसके ऊपर डाल देंगे, किसी को भेज देंगे और बोलेंगे ये बैड न्यूज़ को लेकर जाओ उसके पास, और फिर उसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे प्रकार के इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बैड न्यूज़ आने के बाद में परमेश्वर क्या बोलता है, जो लोगों ने ऐसा किया है ना, उनके लिए परमेश्वर बोलता है वे सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। हालेलुया। अब देखिए, जब बैड न्यूज़ आप सुनेंगे तो आपको असर कैसा आता है, और अभी परमेश्वर कह रहा है वो सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे, तब असर कैसा आता है ना। तो गुड न्यूज़ आपको उत्तेजित करता है, जीवन देता है। बैड न्यूज़ आपको खेदित कर देता है, सॉरी फील कराता है और आपको निराश कर देता है ना। तो बैड न्यूज़ के पीछे परमेश्वर का गुड न्यूज़ बढ़ा देना है और उसके असर को तोड़ देना है, जो बैड न्यूज़ के द्वारा आपके लाइफ में भरना चाहता है कोई, ओके। परमेश्वर का न्याय 9 अध्याय पहले वचन से, मैंने प्रभु की वेदी के ऊपर खड़ा देखा और मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवढ़ियाँ हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूँगा, उनमें से एक भी न भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा, चाहे वे करमेल में छिप जाए परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र के थाम में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने को आज्ञा दूंगा, चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सबके सब मिस्र के नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाशमंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हालेलुया। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। इस्राएल का पुनर्निर्माण
11 वचन से आगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जालेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आपने आज बहुत अच्छा लेसन पढ़ा है कि बैड न्यूज़ को कैसा डील करना चाहिए हमने। हालेलुया। आपको बहुत ध्यान देना है इस बात के ऊपर कि परमेश्वर का वचन जो आमोस के अंदर से आपने पढ़ा कंप्लीटली वॉरफेयर के स्टडी है, ये वॉरफेयर के टीचिंग है। खुल्ला आपको जंग जीतने के सीक्रेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। आमीन। हम अगली बार और एक बार पढ़ेंगे अगर समय मिला तो। ओके, समय मिला तो मतलब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, समय कहाँ जाएगा, उसी के लिए तो है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें इन वचनों के अधीन कर, हमें ये सिखा, फिट एंड फिक्स कर हमें ये वचनों के आधार से, और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 20 चैप्टर 19 वर्स से 31 वर्स। 2 क्रॉनिकल्स 29 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 19 से 31 वचन, और इतिहास की दूसरी पुस्तक 29 अध्याय। अगर हम अकेले में बैठकर पढ़ते हैं तो हमने तो फैसला लिया है अकेले में पर्सनल टाइम में पढ़ना। आप अकेले में बैठकर पढ़ते हैं तो आप अपने अंदर एक सुधार को लेने का मौका देते हैं परमेश्वर को कि हमारे लिए सुधार करे, हमारे जीवन को वो जैसा वचन देकर सुधारना चाहता है, मोल्ड करे, मेल्ट करे, हमें पिता परमेश्वर के अनुसार बना दे। आमीन। अगर आप अपनी तरीके से कोई तरह अलग तरीके से आप इन वचनों को पढ़ना चाहते हैं वैसे कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम पर्सनल टाइम में पढ़ने वाले हैं, व्यक्तिगत समय में पढ़ने वाले, ताकि हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर सुधार कर पाए। आमीन। निश्चित ये सब काम परमेश्वर के आत्मा अनुग्रह के आत्मा ही से होना है, तो निश्चित हमने परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर हमें फिट एंड फिक्स कर, इन वचनों के अधीन कर, और हमें पिता परमेश्वर तेरे ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता।